Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And yes, if you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे। आज सोमवार है और आज के दिन हम कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करते हैं। आर्थिक, व्यापारिक या शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23717117। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है लालिमा। धन्यवाद निखिल। Yes, the headline first. Domestic stocks witness robust gains of more than 2%. Sensex reclaims the 60,500 mark. Nifty regains the 18,000 level. Rupee appreciates 24 paise against the US dollar and Brent crude prices rise above $105 per barrel level. घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, 2% से अधिक की वृद्धि। सेंसेक्स ने 60,500 अंक के स्तर को एक बार फिर से छुआ और निफ्टी ने 18,000 के स्तर को पार किया। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल से ऊपर। और सवालों के जवाब देने चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हमारे मेहमान हैं हरवीर सिंह जी। हेलो जी हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। All right, let's start with the news from the Sensex. The Sensex and the Nifty today posted robust gains of more than 2%. Both indices rose amid positive cues from other Asian share markets. The BSE Sensex reclaimed the 60,500 mark and the NSE Nifty regained the 18,000 level. Sensex climbed 1,335 points or 2.25% to finish at 60,612. Nifty also surged 383 points or 2.17% to settle at 18,053. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap indices underperformed the Sensex. The mid-cap rose 1.27% and the small-cap index ended 1.68% up. In the Sensex pack, 28 companies logged gains while 2 declined. HDFC Bank gained the most as it rose around 10%, followed by HDFC, which added 9.3% amid reports of merger of both companies. Kotak Bank climbed 3.3% and Hindustan Unilever gained 2.2%. On the other hand, Infosys declined 1% and Titan fell 0.2%. In sectoral indices at BSE, all 19 indices gained. Finance Index gained the most as it added 4.3%, followed by Bankex, which rose 3.5%. Power Index climbed 3%, Utilities rose 2.9%, and Metal added 2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,647 companies gained while 877 fell. Shares of 148 companies remained unchanged. घरेलू शेयर बाजार में आज के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। एशियाई बाजारों के सकारात्मक प्रभाव के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 60,500 अंक के स्तर को फिर छुआ और निफ्टी ने 18,000 के पूर्ववर्ती स्तर को प्राप्त किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 2.25% की बढ़त से यानी कि 1,335 अंक चढ़कर 60,612 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.17
0.7% की वृद्धि से 383 अंक ऊपर आ गया, 18,053 पर यह पहुंच गया। और विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.27% ऊपर आ गया, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.68% के उछाल के साथ बंद हुआ। रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत हुआ। घरेलू मुद्रा बाजार में रुपया 75 रुपए 55 पैसे प्रति डॉलर के कारोबार के साथ बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.25% की बढ़त से 98.88 पर था। Well, before we shoot our questions to Harveer ji, who is the editor Rural Voice and our expert today as our guest, we have online Gurunath from Thane. Let's see what he has to ask from our expert. जी गुरुनाथ जी, सवाल पूछें। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। हरवीर सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो किसी कंपनी का सर हमें जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं सर, ये जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं सर, उनकी मतलब अपने कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग मिनिमम या मैक्सिमम होनी चाहिए? क्योंकि उनकी कई कंपनियों का देखता हो तो बहुत कम उनकी शेयर होल्डिंग होती है, तो शेयर होल्डिंग ज्यादा नहीं रहेगा तो अपने कंपनी का एफर्ट भी ज्यादा नहीं लगा सकते, तो सर थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैक्सिमम तो अगर मान लिया लिस्टेड कंपनी है, जब पहले कंपनी आई है उसमें बहुत लोगों ने बहुत कम अपना इक्विटी डाइल्यूट किया था। कुछ कंपनीज का तो 90% तक शेयर होल्डिंग अपनी कंपनी में इक्विटी पार्टनर इक्विटी शेयर था। उसके बाद एक कानून आया है कि आपको पब्लिक होल्डिंग्स बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए हालांकि कंपनीज के लिए कुछ टाइम लिमिट दी गई थी, कुछ कंपनियों ने अपना शेयर होल्डिंग घटाया था, कुछ ने नहीं घटाया, तो इस लिस्ट वाज अराउंड 25%। तो जो क्लोजली होल्डिंग कंपनीज हैं उनमें लिस्टिंग काफी उसका होल्डिंग्स ज्यादा है। कुछ कंपनीज में इवन जो प्रमोटर्स हैं उनका शेयर होल्डिंग 12-15% तक भी है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि किसमें कितना शेयर होल्डिंग है। बट ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है उसमें ये माना जाता है कि जितना ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो कंट्रोल ज्यादा रहता है। और एक मिनिमम थ्रेश होल्ड भी तय किया गया था कि वहां तक आपको आना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अपना शेयर होल्ड। मुंबई से अगले कॉलर हैं सचिन। हेलो सचिन। हेलो सर जी, आपका प्रश्न पूछिए और रेडियो भी प्लीज अपना आप थोड़ा स्लो कर लें। हेलो जी, आपका प्रश्न पूछिए। ओके सर। सर मुझे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में 2 सवाल है जी। ये अभी जो 2 नए टेक्निक्स है, हाइड्रोफोनिक और एक्वाफोनिक, उसके बारे में आपका ओपिनियन जरा बताएंगे प्लीज। जी हरवीर जी। थैंक यू सर। देखिए, जो हाइड्रोपोनिक जो है और इसमें जो एक्वापोनिक जो भी बोलेंगे आप उसको, ये कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर इसको हम लोग बोलते हैं। कंट्रोल्ड कल्टीवेशन होता है। इसके लिए एक आपको एक शेड या एक कवर्ड स्पेस बनाना होता है। और इसमें आपका क्या है कि हाइड्रोपोनिक मतलब पानी के जरिए आप खेती करते हैं और इसको सॉइललेस एग्रीकल्चर भी हम लोग बोलते हैं। क्योंकि सारा जो न्यूट्रिएंट है वो पानी के थ्रू ही वहां तक जाता है। और ये क्योंकि कंट्रोल्ड क्लाइमेट की तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसमें फायदा ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर सीजन का इंतजार नहीं करना है किसी भी क्रॉप के लिए, तो उसको आप ग्रो कर सकते, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम आपका आर्टिफिशियली आपको लाइट देते हैं उसको। और जो न्यूट्रिएंट है वो पानी के थ्रू, पाइप के थ्रू जाता है। और उसमें ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल होता है, स्प्रिंकलर का भी होता है। ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये है कि इसमें यील्ड काफी ज्यादा है नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो यील्ड होता है। जहां तक आपने कहा कि ऑर्गेनिक, हाँ इसमें आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसमें आप केमिकल फार्मिंग ही करें। जो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल होते हैं उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पेस्टिसाइड और केमिकल से बच सकते हैं। ये भी है कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर जो खासतौर से जो बड़े मेट्रोज हैं उनके आसपास कुछ फार्मर्स ने खेती करना शुरू किया और कुछ लोग इंडिविजुअली भी अपने लिए करते हैं, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, जो वेजिटेबल्स खासतौर से हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं, जो उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है उसमें क्या न्यूट्रिएंट इस्तेमाल हुआ या केमिकल का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, कोई डिजीज तो नहीं है। तो ये बट थोड़ा सा ये महंगा है, इट रिक्वायर्स
एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जी। डिपेंड्स ऑन द साइज, जी। किस साइज में आप हाइड्रोपोनिक का कल्टीवेशन उस टेक्नोलॉजी के जरिए करना चाहते हैं। Gee, when so much is being said about the deterioration of our soil quality worldwide due to chemicals and fertilizers, maybe this is the next best option which people can take up. Thank you so much, Harveer ji. We move on to our next caller, Anil Ahuja, who's calling us from Delhi. जी अनिल जी, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार टीम। मेरा मार्केट मंत्रा से ये सवाल है आज का कि जो सेंसेक्स और निफ्टी के अपकमिंग है अपवर्ड ट्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद सेंसेक्स 75,000 और निफ्टी 25,000 के चांस लग रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं फंडामेंटल वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाओ, आपके मुंह में घी शक्कर। हरवीर जी, व्हाट डू यू हैव टू कमेंट ऑन दैट? आई थिंक हमारे लिसनर बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं और अच्छी बात है कि ऑप्टिमिज्म जो है हमेशा पॉजिटिविटी लेकर के आता है। बट अभी जो आज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आया है दैट इज नॉट एनकरेजिंग, तो वो थोड़ा सा कम हुआ है फरवरी से। और अभी हम लोग इन्फ्लेशनरी प्रेशर से भी जूझ रहे हैं और कंपनी जो है वो जो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कंपनी आर पासिंग ऑन टू द कंज्यूमर। तो एक सिर्फ कमोडिटीज का और फ्यूल का इन्फ्लेशन नहीं है, अब थोड़ा सा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का भी इन्फ्लेशन है। तो अभी जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कुछ प्रेशर हमारे ऊपर है, बट लगता है कि मार्केट उन सबको इग्नोर करके आगे जा रहा है। जैसे कि अभी फिर से शायद ये FI का इंटरेस्ट भी मार्केट में आ रहा है। तो आई थिंक जिस तरह हमारे लिसनर होपफुल है, बाकी लोगों को भी होपफुल होना चाहिए। I think Indian economy is pretty robust and has sprung very positive surprises. The fact that we touched 60 plus after COVID, and also our boosts have our exports have got a boost which has been unprecedented. So I think we are moving to we are conquering higher peaks every day, every now and then. That's जी। नोएडा से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हम उनसे बात करते हैं। SPS जैन नाम है इनका। हेलो हेलो जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, नमस्कार जी। हरवीर सिंह जी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। मार्केट जिस तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, तो इसने मान लिया है कि यूक्रेन जंग खत्म हो गई है और कोरोना तो खैर खत्म हो ही गया है, हमको भी बूस्टर डोज लग गई है, तो लगता है मार्केट को भी बूस्टर डोज लगी हुई है। तो इसके और क्या फैक्टर्स हैं जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है? जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपने सवाल पूछा है। जी हरवीर जी। जी हरवीर जी, एक्सप्लेन। देखिए, एक तो आपने ठीक कहा है कि कुछ पॉजिटिव साइंस हैं जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको लेकर के, कुछ जो उनके बीच में बातचीत जारी है, कुछ किस तरीके से फायर हो, क्या रिजोल्व करें उसको किस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिसको रिकवर होने में टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं है। और क्योंकि डिप्लोमेटिक डिस्कशंस और बातचीत होती है, इनमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, क्योंकि कभी लगता है कि बिल्कुल काफी पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो अभी तो इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। दूसरे क्या है कि इस वॉर के जो इम्प्लीकेशन है, जिसका दिक्कत हो गई दुनिया में, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, बहुत सारा जो खासतौर से जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उसमें एडिबल ऑयल हो या फूड ग्रेन हो, उनका एक बड़ा इम्पैक्ट आया। बिकॉज ये दोनों कंट्रीज जो है और इंक्लूडिंग बेलारूस, ये इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है ग्लोबल ट्रेड में, तो वो डिस्टर्ब है, वो सप्लाई अफेक्ट हो रही है, उसके चलते तमाम सारी कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं और वो इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा है। इसी तरीके से जो ऑयल का है वो इम्पैक्ट आ रहा है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर्स आर मेकिंग एग्रीकल्चर कॉस्टली। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हो सकता है कुछ बातें होती है, अफ्रीका जैसे देश में जहाँ रिसोर्सेज का इशू है, वहां के देशों में, वहां बहुत सारे फार्मर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी खेती करने के बाद, क्योंकि फर्टिलाइजर प्राइसेस बहुत अनप्रेसिडेंटली बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं जो लोग मार्केट में है या जो कंपनी है जिनके स्टॉक्स हैं, कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है। तो ये अभी थोड़ा सा इसको हमें समझने में समय लगेगा कि एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा ये बात सही है कि जो मार्केट में जो रैली है और जिस तरीके से मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं नंबर्स, और ये हमारे सेंसेक्स और निफ्टी, उसके पीछे बड़ी बात है कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है, क्योंकि
उसके भी फैक्टर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो दूसरे एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें मार्केट के कंपैरिजन में रिटर्न बहुत कम है। तो इसलिए लोग जो इन्वेस्टेबल सरप्लस जिन लोगों के पास है, उनको लगता है कि मार्केट कैन गिव बेटर रिटर्न कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रियल एस्टेट और बुलियन और सम अदर ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई मार्केट पे काफी उस तरफ जो है कि फ्लो है, और दैट इज रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ द मार्केट। Right, and we have fantastic foreign reserves also. That also probably adds to the strong market sentiment. We are now joined by Vikas Jolly from Gurugram. Hello, Vikas ji. थैंक यू ललिमा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी। अभी कंपनीज के मार्च क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड वी ऑल नो क्रूड ऑयल या उसके डेरिवेटिव्स इज अ रॉ मटेरियल फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्लस वी माइट सी थर्ड वेव इम्पैक्ट एंड मे बी एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट। सो कंपनीज का नाम ना लेते हुए कौन से सेक्टर्स आपको लगता है शाइन करेंगे या उनके रिजल्ट्स हिट होंगे? थैंक यू जी। आपने सही कहा कि अभी रिजल्ट्स आएंगे लास्ट क्वार्टर के और कुछ दिन में आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये बात फैक्ट है कि एक तो डिमांड को लेकर चैलेंज है, वो ऑटो सेक्टर हो या एफएमसीजी सेक्टर हो, डिमांड का एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। उसके पीछे रीजन है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ी है, वो सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस की वजह से हो या जो इनपुट मटेरियल है वो कमोडिटीज हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हो, उनकी वजह से उसका नतीजा ये है कि मार्जिन के ऊपर प्रेशर है। So you can find some squeeze in the margin in some companies, but यदि है कि कुछ सेक्टर्स अच्छे हैं, सपोज के जो एग्रो कमोडिटीज पे रिलेटेड या जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे बढ़े हैं और बहुत सारा जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो कॉटन हो, वो पल्सेज हो, वो आपका फूड ग्रेन हो, ऑयल सीड हो, उन सब के दाम बहुत अच्छे हैं और ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि रूरल इंडिया कैन गिव गुड डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट्स जो वहां पर ज्यादा जिनकी खपत होती है। तो उसमें जैसे एग्रोकेमिकल्स हैं या इवन फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा, हालांकि फर्टिलाइजर कंपनीज के ऊपर डबल प्रेशर है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा बढ़े, तो बट ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसको थोड़ा बेहतर है, एंड आईटी कंपनीज अनअफेक्टेड है, उनका थोड़ा मेरे ख्याल से ठीक रह सकता है। Right, and I also think that the fact that we have moved towards an Atmanirbhar Bharat, the fact that semiconductor chips are being manufactured, we are becoming more reliant on our own selves for defense, and we are having now electric vehicles to combat the oil, all the money that would go for oil import. All these things I think are adding to a robust economy. Well, friends, please stay tuned, and we'll be going for a short break and shall be back very soon. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आर्थिक, व्यापारिक या शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23314444, 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23717117। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से प्रकाश। हेलो जी प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न, मैंने एक LIC की पॉलिसी ली थी, LIC प्रॉफिट प्लस, वो मेरे 10-12 साल हो गए हैं और मैंने 3-4 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद बंद कर दी और वो अब मुझे मिली वो पॉलिसी, क्या मुझे उसको पैसा वापस मिल सकता है? जी हरवीर जी बताएं। देखिए, पॉलिसी मिलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पॉलिसी के जो उसके रूल्स हैं वो देखना है कि जो 4 साल तक आपने प्रीमियम दिया और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर कुछ पॉलिसी तो ऐसी होती है कि आप एक मिनिमम पीरियड तक उसमें प्रीमियम देते हैं, उसके बाद भी वो एग्जिस्ट करती है, बट वो एग्जिस्ट करती है आपको इंश्योरेंस कवर के लिए।
तो ये आपको उस पॉलिसी के जो नियम है उनको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, बिकॉज पॉलिसी के पेपर का मायने नहीं है, मायने है कि उसके साथ जो कंडीशंस हैं उनको आप फुलफिल करते हैं नहीं करते। जी हरवीर जी, ये पेड अप वैल्यू प्राप्त हो सकती है क्या? अगेन आई एम सेइंग इट विल डिपेंड ऑन दैट, बिकॉज ये इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया 1 मिलियन ईयर के बाद तो फिर आपको मुश्किल हो। वैसे हम प्रकाश जी से कहना चाहेंगे कि आप LIC के टोल फ्री नंबर पर एक बार फोन करके उनसे जरूर बात कर लें, क्योंकि वो आपको सबसे बेहतर सलाह दे पाएंगे और आगे आपको क्या करना उसके बारे में भी जानकारी दे पाएंगे आपको। और इस बीच हम एक खबर पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा योगदान चल रहा है और इस योजना के शुरू होने के बाद से महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत कुल ऋणों में से उन्हें करीब 68% ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार की ओर से आज बताया गया कि अप्रैल 2015 से शुरू की गई इस योजना के तहत देश में कुल स्वीकृत 34 करोड़ 28 लाख ऋणों के जरिए 18.52 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। The union government today said 14.92 lakh COVID-19 health claims of a total amount of 17,537 crore rupees were lodged with public sector insurance companies, of which 93.3% claims had been disposed of till the 31st of December last year. In a written reply to a question in the Lok Sabha, Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad said during the period of March 2020 to March 2022, the government has infused 17,450 crore rupees capital into the public sector insurance companies to improve their solvency ratios. और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत इस वर्ष 23 मार्च तक 62,145 लाभार्थियों को 82 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है ताकि उन बीमित व्यक्तियों को राहत दी जा सके जो कोविड महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए थे। And now let's see who's online. Well, Gaurav is there with us. He's calling us from Ghaziabad. जी Gaurav, सवाल पूछें। सर ये इस साल रूरल इकोनॉमी क्या अच्छी रहेगी तो उसकी डिमांड तेज बढ़ेगी, और मेरा सर एक्चुअल सवाल उसके बारे में है कि ये फर्टिलाइजर की डिमांड कहीं मीट कर पाएंगे हम अगले साल, बिकॉज ऑफ ये वॉर हो रही है और हमारे यहाँ जैसे श्रीलंका में दिक्कत हो वैसा ना हो, उसके लिए क्या सरकार कुछ ऑलरेडी अरेंजमेंट फर्टिलाइजर का कर रही है या? जी हरवीर जी। देखिए, एक तो ये फैक्ट है कि लेकिन ये जो ज्यादातर कमोडिटीज हैं अभी जो क्रूड्स आई है मार्केट में, इनके दाम बेहतर है, इंक्लूडिंग आपका गेहूं का दाम भी कुछ जगहों पर MSP से ऊपर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है। और जो मस्टर्ड का दाम बहुत बेहतर चल रहा है, करीब कुछ जगह से 50% ओवर एंड अबव MSP है, बाकी पल्सेस का दाम भी काफी ज्यादा है, सोयाबीन का काफी ज्यादा है, कॉटन प्राइस तो रिकॉर्ड लेवल पर चल रही है। इसका मतलब ये जितना एक्स्ट्रा इनकम है दैट इज गोइंग टू द फार्मिंग सेक्टर और रूरल इकोनॉमी, तो एक तो ये बेनिफिट है, तो उसका एक इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा पॉजिटिव। दूसरे श्रीलंका में हमें बहुत अंतर है, हम लोग अपना काफी बड़ा रिक्वायरमेंट हम लोग प्रोडक्शन का, खासतौर से यूरिया में तो अपना ऑलमोस्ट 3/4 रिक्वायरमेंट हम लोग अपने खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरा करते हैं। हाँ, जो कंट्रोल फर्टिलाइजर है उसमें जरूर क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ नहीं है उनमें से कहीं का, वो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, बट बिकॉज हम एक रेगुलर प्रोड्यूसर हैं और हमारे प्रोडक्शन प्लांट्स कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो कंपनी है वो अरेंजमेंट कर रही है कि रॉ मटेरियल आता रहे। इस थोड़ा चैलेंज तो होगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है 2 महीने का, जो नया खरीद सीजन शुरू होगा उसके लिए। तो आई होप दैट गवर्नमेंट और कंपनी मिलकर अपना जो जरूरत है उसके लिए मैनेज करेंगे। जी, और मुंबई से हसमुख डेडिया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो। या नमस्ते मार्केट मंत्रा। नमस्ते, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हरवी जी, 7 अप्रैल RBI की पॉलिसी है जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुमान? थैंक यू जी। देखिए, काफी टाइम से RBI जो है एक ग्रोथ स्टांस लेकर के चल रहा है, और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको थोड़ा वो लोग अभी उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह फैक्ट है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर ग्लोबली जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है सब फेस कर रहे हैं, हम लोग भी फेस कर रहे हैं। और अभी पिछले करीब 10 महीने से जो WPI है वो डबल डिजिट पे बना हुआ है,
और जो सीपीआई है वो भी इस वक्त आरबीआई का जो एक्सेप्टेबल लेवल है 4% ±2 उसके ऊपर चला गया है। और अब भी इसमें जो 4-4.5 महीने के गैप के बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में फिर से जो बढ़ोतरी हुई है उसका इम्पैक्ट आएगा। इसका मतलब आरबीआई को कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये अगर 7 अप्रैल की मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में ये लोग मेंटेन कर लेते हैं, ग्रोथ को ज्यादा वेटेज देते हैं और इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज नहीं करते, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक आरबीआई इस स्टांस को कायम रख पाएगी। And we also talk of high fertilizer prices. I think the government is promoting zero budget farming to counteract that as well. So moving on to the Asian markets. एशियाई शेयर बाजारों में आज ज्यादातर बढ़त का रुख देखा गया। जापान के निक्केई 225 के कारोबार में 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि हांगकांग के हिंग सेंग में 2.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.7% का उछाल आया। वहीं चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में आज 0.9% की बढ़त देखी गई, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% के नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजारों की हम बात करें तो आज दिन के कारोबार में मिला जुला रुख देखा गया। लंदन की FTSE 100 और फ्रांस के कैक में 0.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं जर्मनी के डेक्स 0.1% नीचे आकर कारोबार कर रहा था। Brent crude oil today rose above $105 a barrel as concern about tight supply arising from Russia's military operation in Ukraine. The lack of an Iranian nuclear deal also pushed the crude prices up, despite countries releasing oil from their strategic reserves. The crude prices climbed more than 1% in intraday trade. Brent crude was trading around $105.75 per barrel, while WTI crude prices were trading around $100.90 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना आज 55 रुपए की गिरावट पर रहा और ये 51,290 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर चांदी मई के वायदा कारोबार में 160 रुपए ऊपर चढ़कर 66,895 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो सोना लुढ़ककर $1,936.30 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी आज दिन के कारोबार में घटकर $25 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। And let's take a look at who's now with us. Pankaj has joined us from Delhi. जी पंकज जी सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। व्हाट ए वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू। रियली स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू। पर सर मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कड़वा है। जो जनरेशन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मेरे फादर कर रहे थे और 40 इयर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट के अंदर, तो बेसिकली कुछ जैसे लोगों ने शेयर मार्केट को बनाया। अब मेरा ट्रांसमिशन कराने में एक विंडो क्यों नहीं है? IPF में चला जाता है, पहले मैं अपने नाम में मैंने लेटर दे लिया, उसके बाद फिर सेम डॉक्यूमेंट जो है IPF अथॉरिटी भी मांग रहा है, वो पैसे देना नहीं चाहते। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक विंडो हो जाए जहाँ पे सारे केसेस लेके जितने भी उसके शेयर है फादर मदर के, वो वहीं रिजॉल्व कर देना, एक विंडो। जी हरवीर जी, आप जल्दी इन्हें प्रश्न के उत्तर दें। नहीं, देखिए आई एग्री विद हिम कि जो शेयर ट्रांसफर्स को लेकर के बहुत सारे लोगों के इश्यूज आते हैं, खासतौर से जो उनको इनहेरिटेंस में जो स्टॉक्स मिलते हैं उनके पेरेंट्स के वजह से। तो ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सेबी को और कॉर्पोरेट अफेयर्स को, दोनों को मिलकर के एक रास्ता निकालना चाहिए। बिकॉज कई बार आप ऑनलाइन में जहाँ ह्यूमन कॉन्टेक्ट नहीं है वहां पर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ग्रीवांस को ठीक से एड्रेस नहीं किया जाता, तो लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम सामने आती है, जैसे अभी हमारे। जी हरवीर जी, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते एक बार मुख्य समाचार आपको फिर से सुना दें। घरेलू शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल रहा, 2% से अधिक की वृद्धि। सेंसेक्स ने 60,500 अंक के स्तर को एक बार फिर से छुआ और निफ्टी ने 18,000 के स्तर को पार किया। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल से ऊपर रही। Domestic stocks witnessed robust gains of more than 2%. Sensex reclaims the 60,500 mark. Nifty regains 18,000 level. Rupee appreciates 24 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise above $105 per barrel. On that note, it's time for us to wind up. Namaskar.